Hello everyone, welcome you all. Today in the part 9 of human reproduction, we will learn hormonal control of male reproductive system. Okay, so this is the part which we will learn today, and the puberty age in male is around 13 years. Okay, they attain puberty in the age between 13 to 16 years. तो ये जो प्रोसेस है ये प्यूबर्टी पर ही स्टार्ट होगा. ठीक है, ये हार्मोनल चेंजेस होंगे वो प्यूबर्टी पे ही स्टार्ट होंगे जब मेल अटेन कर लेगा प्यूबर्टी. ओके, सो लेट्स सी. दिस इज द डायग्राम ऑफ टेस्टिस एंड दीज आर द seminiferous tubules inside. Okay, these are the lobules in which around 1 to 4 seminiferous tubules are present. ठीक है, seminiferous tubules का जो TS है वो ये है. दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ seminiferous tubule. Alright, in the transverse section you will see that the outer membrane, this one, the red color membrane is the basal membrane, and here you can see these are the Sertoli cells and the germ cells. Okay, seminiferous tubule is made up of Sertoli cells and germ cells. Now Sertoli cells are also called nurse cells because they provide nourishment to the developing sperms, as well as the other functions are also there which we will see today. And the germ cells are responsible for the formation of sperms. Okay, तो germ cells से ही sperms बनते हैं. ये जो process है sperms बनने का from the primary spermatocyte is what we call spermatogenesis. तो spermatogenesis होने के लिए what are all the hormones responsible that we have to learn today. Okay, so let's see. As the onset of puberty, this hypothalamus gland starts secreting gonadotropin releasing hormone, that is GnRH. जैसे ही प्यूबर्टी अटेन होती है तो ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड से GnRH हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है. नाउ दिस हार्मोन स्टिमुलेट द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. एंटीरियर मीन्स आगे वाली लोब और पोस्टीरियर मीन्स पीछे वाली लोब. ठीक है, तो इट act on the anterior lobe of the pituitary gland and it stimulate LH and FSH hormone. LH is luteinizing hormone. ठीक है, LH क्या है? luteinizing hormone है, and FSH is follicle stimulating hormone. ठीक है, ये दो हार्मोन है LH and FSH. Now these are the Leydig cells. These are the Leydig cells which are present in the testes. So this is what? This is the seminiferous tubule. This is another seminiferous tubule. Okay, and so here in between you will see Leydig cells are present. Right, these cells are also called interstitial cells. ठीक है, इनको interstitial cells भी बोलते हैं. Leydig cells, interstitial cells एक ही बात है. तो ये LH हार्मोन जो होता है, with this hormone is received by the receptor present on the Leydig cells. LH हार्मोन, ये ब्लैक कलर से क्या है, रिसेप्टर बनाया हुआ है. ये LH हार्मोन यहाँ पे चला जाएगा. ठीक है, रिसेप्टर इसे रिसीव कर लेंगे. Leydig cells पे जो रिसेप्टर हैं वो रिसीव करेंगे LH को. Now these cells, Leydig cells will secrete testosterone hormone. ठीक है, they start secreting testosterone hormone. Now this hormone will enter in the seminiferous tubule. ठीक है, ये अंदर चला जाएगा and it start accumulating here. Now for increasing the concentration of testosterone hormone, this Sertoli cell secrete ABP. ABP क्या है? Androgen binding protein है. Okay, androgen, testosterone is the androgen hormone. Start secreting androgen binding protein. ठीक है, ये कौन सिक्रीट करेगा? Sertoli cells. They start secreting ABP, androgen binding protein. ये एंड्रोजन को बाइंड करते हैं. ठीक है, टेस्टोस्टेरोन एक एंड्रोजन हार्मोन है तो इसको ये बाइंड करेंगे एंड दे इंक्रीज इट्स कंसंट्रेशन इन द seminiferous tubule. ठीक है, इस हार्मोन की, इस ABP की वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कंसंट्रेशन अंदर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या शुरू हो जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस. ओके, दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस. तो क्या होगा? स्पर्म्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है,
ये तो सारा पॉजिटिव फीडबैक है. इट इज़ इंक्रीजिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस. अब क्या होगा, जब स्पर्म्स बहुत सारे बन जाएंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन भी हाई हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, दैन अ नेगेटिव फीडबैक इज सेंट. क्योंकि ये ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना भी सही नहीं है ना, ये ब्लड में चला जाएगा, फिर अदर प्रॉब्लम्स आएंगी. ऐसे ही बहुत सारे ये स्पर्म्स जो होते हैं ये भी नहीं बन सकते ना, ज़्यादा क्वांटिटी तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट गुड. तो अब क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक जाएगा. ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक पहला हम बात करते हैं सर्टोली सेल्स की. सर्टोली सेल्स एक तो पॉजिटिव फीडबैक में एबीपी सिक्रीट किया ना, अब स्पर्म्स बढ़ते जाएंगे. स्पर्म क्या होगा, स्पर्म्स सारा नरिशमेंट किससे लेते हैं, सर्टोली सेल से लेते हैं ना नरिशमेंट. तो यहाँ पे सर्टोली सेल्स में एक और हार्मोन सिक्रीट होगा, उसे बोलते हैं इनहिबिन. ठीक है, ये इनहिबिन दिख रहा है आपको. सर्टोली सेल स्टार्ट सिक्रीटिंग इनहिबिन हार्मोन. दिस हार्मोन विल सेंड अ नेगेटिव फीडबैक, okay, to the hypothalamus gland to decrease the level of gonadotropin releasing hormone, and in the pituitary gland to decrease the level of FSH hormone. ठीक है, समझ में आया. इनहिबिन क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक भेजेगा हाइपोथैलेमस ग्लैंड को टू डिक्रीज द लेवल ऑफ GnRH एंड द इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड टू डिक्रीज द लेवल ऑफ FSH. ठीक है, इससे क्या होगा, अनफॉर्चुनेटली ABP भी डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है ना, समझ गए. और अब टेस्टोस्टेरोन क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल जब बढ़ जाएगा तो ये भी नेगेटिव फीडबैक भेजता है. इट विल गो इन द ब्लड एंड फ्रॉम हियर इट रीचेस द hypothalamus gland and also to the anterior lobe of pituitary gland and send a negative feedback to decrease the concentration of GnRH and LH. ठीक है, GnRH और LH डिक्रीज हो जाएगा तो अनफॉर्चुनेटली टेस्टोस्टेरोन लेवल भी डिक्रीज हो जाएगी. समझ गए, आर यू गेटिंग माई पॉइंट. तो क्या होगा, धीरे धीरे ये प्रोसेस भी डिक्रीज हो जाएगा. विच प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म जो है बनना कम हो जाएंगे धीरे धीरे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आई एम रिपीटिंग इट अगैन. ठीक है, GnRH समझ गए. जैसे ही प्यूबर्टी अटेन होगी तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड से GnRH हार्मोन रिलीज होगा. GnRH हार्मोन स्टिमुलेट करेगा LH हार्मोन और FSH हार्मोन को. ये दोनों हार्मोन कहाँ से रिलीज होंगे, एंटीरियर लोब से, पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब से. LH तो रिसेप्टर सेल्स होते हैं लेडिक सेल्स पे, उन पे एक्ट करेगा, उससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होगा. FSH किस पे एक्ट करेगा, सर्टोली सेल्स पे. ठीक है, सर्टोली सेल्स आर आल्सो हैविंग रिसेप्टर फॉर FSH. दे रिसीव दिस हार्मोन एंड स्टार्ट सिक्रीटिंग एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. ठीक है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, इट इंक्रीजेज द टेस्टोस्टेरोन कंसंट्रेशन इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ठीक है, ABP की वजह से टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टिमुलेट हो जाएगा. ठीक है, स्पर्म्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे. अब जैसे ही स्पर्म्स बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा हो जाएगी, तो नेगेटिव फीडबैक जाएगा जिसमें सर्टोली सेल्स इनहिबिन हार्मोन सिक्रीट करेंगी. वो इस प्रोसेस को डिक्रीज करेगा, मतलब ये नेगेटिव फीडबैक भेजेगा हाइपोथैलेमस को और एंटीरियर लोब को, जिससे कि ये GnRH और FSH लेवल कम हो जाएगा. ऐसे ही टेस्टोस्टेरोन भी नेगेटिव फीडबैक भेजेगा फॉर बाय विच दिस GnRH एंड LH ऑल्सो डिक्रीजेस. ठीक है, their level decreases and unfortunately the spermatogenesis process also decreases. Are you getting my point? ठीक है, ये सब क्लियर है आपको. चलो आगे बढ़ते हैं. तो दिस इज अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल इन द मेल, ह्यूमन मेल, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन मेल. नाउ here are the accessory sex characters in males. So you know what is puberty? It is a period when the reproductive organs become functional. So in the male it is around 13 to 16 years. Okay, it is triggered by testosterone hormone, and these are the changes which occurs after puberty. Enlargement of penis and scrotum, broadening of shoulders. ठीक है, आपने देखा होगा ब्रॉड हो जाते हैं थोड़े बॉयज़ के शोल्डर्स. देन ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड फेशियल हेयर स्टार्ट्स. वॉइस कैसी हो जाएगी, तो डीप हो जाएगी, भारी आवाज़ हो जाती है. इंक्रीज इन हाइट, एकदम से हाइट बढ़ जाती है. इंक्रीज डेवलपमेंट ऑफ मस्कुलेटर एंड बोन्स. ठीक है, मसल्स इंक्रीज हो जाते हैं. ठीक है, मस्कुलर बॉडी हो जाती है. So this is all about today's topic. Hope you like this video. Thanks for watching.